Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे बीएसई और एनएसई की। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, शनिवार का दिन आपके लिए बेहद खास होता है। आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, जीएसटी से संबंधित कोई भी सवाल हमसे जरूर पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23300464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें। और हां, आपके सवालों का जवाब देने के लिए खासतौर पर आज स्टूडियो में मौजूद हैं शरद कोहली, आर्थिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत शरद जी आपका। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश, सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। फर्स्ट द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Prime Minister Narendra Modi says India deeply appreciates and fully reciprocates US President Donald Trump's sentiment and positive assessment of India-US relations. Says the two countries share forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. GST reforms are expected to add around 20 lakh crore rupees to the nation's GDP, says Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw. And domestic markets rise on positive indicators. Sensex and Nifty gain over 1% this week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक रुख और भारत अमेरिका संबंधों पर बयान के लिए उनकी तारीफ की। कहा, दोनों देश भविष्य की वैश्विक रणनीतिक संबंधों को साझा करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों से जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे और घरेलू बाजारों में इस सप्ताह 1% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। Prime Minister Narendra Modi says he deeply appreciates and fully reciprocates President Donald Trump's sentiments and positive assessment of India-US ties. Responding to the US President's recent statements, the Prime Minister said in a social media post that India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. Mr. Trump, in remarks to the media in Washington last night, said that India and the United States have a special relationship and there is nothing to worry about the ties between the two countries. Mr. Trump said Mr. Modi is a great Prime Minister and he will always be friends with Modi. In an earlier social media post, Mr. Trump had commented that the US had lost India to China. Now, what do we make of these favorable comments that have come our way from President Trump? Does that mean the tariffs could be off soon? Well, I thought this is a baby step towards what you're saying, and I think India-US relationship is very deep-rooted, people-to-people, defense, ISRO and NASA. And there are a lot of fronts we are tied together. One is the oldest democracy, one is the largest democracy. I think they're inseparable, they're natural allies. So this had to happen. I was just waiting for the day when a positive Defense comment services came. and IT. Yeah, but the only thing I think White House needs to take care is
some of the people around President Trump, I mean, they are making a bit of nasty comments sometimes. They should be avoided, because if you're moving in a positive direction, the feelers from the White House should also be positive. So I think this will eventually settle down. It's a passing phase. In English, they say, this too shall pass. Absolutely. And we have two callers online with us, one from Delhi and another one from Saharanpur. First we go to Delhi. Hello, Daksh Prajapati, a warm welcome. Please ask your question. हेलो जी, मार्केट मंत्रालय के सुपरस्टार शरद कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार जी। मोदी जी के सामने अमेरिका नरम हुआ, ये लक्षण तो दिख गए। अब मेरा सवाल ये है कि 5 और 18% जीएसटी जो अब लागू हो जाएगी और पहले 12 और 28 भी थी, हम कितने सावधान रहे मार्केट में कोई सामान लाने के लिए जाए? क्या वो हमारे दुकानदार पेट को फना बना दे कि हमने इतना सस्ता कर दिया, ये रेट है? इस पे भी सरकार की तरफ से निगाह रखी जाएगी, पहले जो रेट थे और अब कितने रेट हैं, इसके ऊपर भी कोई एक्शन या कोई ऐसी टीम बनेगी जो जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे मैंने 4 आइटम की मैंने रेट पुराने ले रखे हैं जो मुझे जरूरत के हिसाब से मुझे लेने भी हैं और आगे आने टाइम में मुझे उनको परचेज भी करना है। धन्यवाद। जी हाँ, दक्ष प्रजापति जी, बहुत अच्छा सवाल है सबके मन में। अब राजेश और हर्ष, हमारे दक्ष प्रजापति जी जो लिसनर है, उनकी आवाज एक और लिसनर है RS ढैया साहब, उनसे बहुत मिलती है इनकी आवाज। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही पूछ रहे हैं, मिलती जुलती आवाज। आज हमारे पैनल से सुझाव आ रहा है कि आप इनका जवाब देना शुरू करें। इसके पहले सुन लेते हैं कि इसी बारे में CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन क्या कहते हैं। मिस्टर संजय अग्रवाल। Because it is a very bold reform and it is very comprehensive also. So the interest of common man is the foremost priority in doing this exercise, and it has been kept in mind that the items of daily necessities of common man are kept at merit rate. For that, a study was made how a common man spent his budget on his monthly buying. So once that study has been done, so the items on which common man spends his money, so those items have been kept at merit rate of 5%. So what Prime Minister has said in his speeches is actually the cornerstone or touchstone for determining the rates at which the commodity should be charged. जी, शरद जी। तो मुझे लगता है कि 2 फ्रंट पे इस चीज को हम चेक कर सकते हैं जो प्रजापति साहब ने पूछा। पहले तो ग्राहकों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको जो सामान लेना है, बहुत अच्छा प्रजापति साहब ने मूव किया कि आप पहले से उनका रेट पता करके रखें। और जब आप दुकान पे जाएं तो आपको याद होगा, महिलाएं जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, वो कई जगह सामान पूछ के लेती हैं, ऐसे हल्के फुल्के मूड में कहा जाता है। मुझे लगता है ये आदत सबको अपनानी चाहिए कुछ हफ्तों तक। आपको जो सामान लेना, आप एक दुकान पे जाइए, दूसरे पे जाइए, तीसरे पे, खासकर उस सामान पर जहां पर इनवॉइस में आपको जीएसटी दिखाई देता है, क्योंकि एमआरपी जो होती है उसमें तो जीएसटी मिला होता है। उसके लिए तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री से संपर्क में हैं और हम इंडस्ट्री को समझा रहे हैं कि भाई आप ये पूरा पास ऑन करिए। तो उसमें तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पीछे से ही अगर कंपनी कहती है मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो उसमें ग्राहक कुछ नहीं कर पाएगा। पर जहां पर खासकर जीएसटी इनवॉइस पे चार्ज हो रहा है, वहां पर आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप अभी रेट पता कर लीजिए 22 तारीख से पहले, अभी तो वो घटाएंगे नहीं, और फिर 22 तारीख के बाद आपको जो डिफरेंस दिखे, और बड़ा आसान है, आप गूगल करिए। आजकल जो सूची है जीएसटी आइटम्स की, वो गूगल पे उपलब्ध है। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस पे जीएसटी का क्या रेट हो गया, मतलब कितना बदला, क्योंकि सब लोगों को ये याद रखना मुश्किल है। 28 से 18 में कौन से आए, 12 से 5 में कौन से आए, 0 कौन से हो गए। तो ये आप गूगल करके देखिएगा और आपको तुरंत पता लग जाएगा। और दूसरा, मैं मानता हूं कि कंपटीशन मार्केट में इतना है सब चीजों का कि एक कुछ और रेट पे बेचेगा, दूसरा कुछ और रेट पे बेचेगा, तो उसको सामान बेचने में दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ हफ्तों की दिक्कत है। पर प्रजापति साहब, आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो कंसर्न है, कुछ उसको सरकार पूरा करेगी, कुछ आप जैसे जो जागरूक उपभोक्ता हैं, मुझे लग रहा है वो स्वयं भी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। और समय समय पे मैं समझता हूं आकाशवाणी भी इस बात को उठाता रहेगा जब भी मौका मिलेगा। We'll continue our discussion with Sharad. We'll go in for short break at this point of time and be back soon. मार्केट मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत। सीधे चलते हैं सहारनपुर। विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, जल्दी से अपना सवाल पूछ लें। मार्केट टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न यह है, मैंने LIC का कन्वर्टिंग प्लान दिया हुआ है, जिसकी ईयरली प्रीमियम लगभग 35,000 है। तो सर, मैं इसके विवेक हम समझ नहीं पाए, आप क्या कह रहे हैं, क्या सवाल दोहराएंगे? LIC का सर एंडोर्समेंट प्लान चल रहा है जी। हाँ, सुन पा रहे हैं सर? इंडोर्समेंट प्लान, LIC का एंडोर्समेंट प्लान चल रहा है। एंडोमेंट प्लान के बारे में पूछ रहे हैं। चल रहा है जी।
और जिसका जो प्रीमियम है सर वो 35,000 रुपए है जी। और मैं इसकी 10 ईयरली प्रीमियम पे कर चुका हूँ। 10 साल से मैं इसको पे कर रहा हूँ जी। और अभी बाकी की 7 किस्तें बाकी हैं। 7 साल के लिए अभी प्रीमियम बाकी है जी। जैसा मैंने आपके प्रोग्राम सुना, मेरा टर्म प्लान भी मैंने लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस, और हमें निवेश और जो सुरक्षा है उसको अलग अलग करना चाहिए। क्या मुझे प्लान आगे कंटिन्यू करना चाहिए या इसका बंद कर म्यूचुअल फंड में मुझे जाना चाहिए? क्या गाइड करें? बहुत अच्छा सवाल है विवेक, बिल्कुल ये ठीक बात है। हम समय समय पर इस बात के लिए बताते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उतना रिटर्न नहीं आ पाता। हालांकि कुछ एक इंश्योरेंस के प्रोग्राम हो सकते हैं कभी कभी मार्केट के जो रिटर्न रेट्स हैं उनको बीट करते हो। मार्केट से मेरा मतलब स्टॉक मार्केट से नहीं है। पर अब इसमें विवेक आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सरेंडर वैल्यू होती है। तो आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने लिया हुआ है आप उससे संपर्क करें और वो आपको सरेंडर वैल्यू बताएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सरेंडर वैल्यू जितना आपने पैसा दिया है उतना ही आ रहा है, खाली उसके फालतू कुछ नहीं आ रहा है, तो और रिटर्न आपको कुछ प्रॉमिस जिसमें रिटर्न था, एंडाउमेंट पॉलिसी में नॉर्मली रिटर्न कम होता है, पर मान लीजिए कोई रिटर्न इनबिल्ट है, मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिसी है, एंडाउमेंट में बहुत तरीके की पॉलिसीज होती है, एंडाउमेंट तो एक कैरेक्टर है। तो अगर आपको वो रिटर्न लग रहा है आ रहा है उसके आसपास आ रहा है तो फिर आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। परंतु अगर आपको लग रहा है कि खाली आपको आपका प्रीमियम ही दे रहे हैं 10 साल बाद भी, तो फिर मुझे लगता है जहां एक गांव में पहले कहावत हुआ करती थी, जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश, कि जब इतने दिन आप चल गए, हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं लगती है सुनने में, जहां इतने 10 साल आप खींच गए तो फिर 5 साल और खींच दीजिए। पर ये इस पर निर्भर करेगा विवेक कि आपको वो एक स्टेटमेंट देंगे सरेंडर वैल्यू की, उसमें आप चेक करिएगा, सरेंडर वैल्यू चेक करिएगा। आप बेशक मार्केट मंत्रा में उन नंबर्स को दोबारा पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, पर आप स्वयं भी जान जाएंगे उस सरेंडर वैल्यू स्टेटमेंट को देख के, तो उसमें आपको अपना नफा नुकसान समझ में आ जाएगा। और कई बार तो शरद मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ये एंडाउमेंट प्लान में जब सरेंडर करने जाते हैं तो आपने जो मूलधन दिया हुआ है उससे भी कम आता है, क्योंकि आप खरीद चुके होते हैं। क्योंकि मुझे इनकी विवेक की बात सुन के लग रहा है शायद इस एंडोमेंट प्लान में कुछ रिटर्न भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मिक्स नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट का टच है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर होगा। पर अब इनका आपका जो टारगेट है उससे कम है, ज्यादा है, ये बहुत, उसके लिए थोड़े कुछ विवेक और नंबर्स चाहिए होंगे हमें पूरी तरह से निर्णय पहुंचने के लिए। परंतु मैंने आपको जो पैमाने बताए हैं आप उसके आधार पर निर्णय कर सकते हैं। बी.आर. नाथ हमारे अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत नाथ साहब, सवाल पूछने। नमस्कार। जय हिंद सर। नमस्कार कोहली जी, नमस्कार ऑल्सो। नमस्कार नाथ साहब। सर जी ऐसा है, I think we've lost touch with him. We go to Omkar from Delhi now. Omkar, a warm welcome. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, ओमकार सिंह बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलें। ये तो जीएसटी के नए रूल बने हैं 5 से 18% के, इसके बारे में मैं कुछ पूरी जानकारी चाहता हूँ आपसे। क्या जानकारी चाहते हैं आप? नहीं, वो जनरल मुझे लगता है कुछ पूछ रहे हैं, तो हम वी हैव अ स्टोरी ऑन दैट। बहुत समझा, उसमें तो स्टोरी भी है। और आप अपना रेडियो सेट ओंकार जी बंद कर लीजिए, आपकी आवाज एको हो रही है, हमारी भी एको हो रही है। अब देखिए रेट पहले 4 मुख्य रेट थे, अब 2 मुख्य रेट रह गए हैं। तो सामान की कीमतें घटेंगी, देश में मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। हमारी जीडीपी में हमारे मंत्री जी ने कहा 20 लाख करोड़ का जीडीपी में इजाफा हो सकता है। कुल मिला के ओमकार साहब तो बहुत लंबा डिस्कशन है, स्टोरी में भी कवर हुआ था। मैं आपको संक्षेप में ये बता सकता हूं कि आपको अब बचत होनी शुरू हो जाएगी, करीब 7 से 10% की आपको, बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ चीजों में आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। संक्षेप में तो मैं यही कह सकता हूं। और संक्षेप में हम ये बता दें कि सरकार ने हाल ही में जीएसटी सुधारों के बाद आगामी 22 सितंबर से उपभोक्ताओं के दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं की कीमतें कम होने जा रही हैं। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर इसे सिर्फ 5 और 18% के स्लैब में बदल दिया है। इन बदलावों से दवाओं और दूध से लेकर कारों, साबुन तथा आईपीएल टिकटों के भी सस्ते होने की उम्मीद है। आज हम डेयरी उत्पादों के लिए किए गए सुधारों पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। जीएसटी परिषद ने कई डेयरी उत्पादों को करों से छूट देने का फैसला किया है। पनीर, छेना और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध जैसी वस्तुएं अब करमुक्त हैं, जिन पर अभी तक 5% जीएसटी लगता था। अब इस पर कुछ भी नहीं लगना है। इससे इन उत्पादों की किफायती दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही लोहे, स्टील और एल्यूमिनियम के डिब्बों में बेचे जाने वाले दूध उत्पादों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे ये सामान भी सस्ते हो जाएंगे। विजय फ्रॉम गुरुग्राम इज विद अस। वार्म वेलकम विजय। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
जी नमस्कार। शरद सर से मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने पीछे टर्म इंश्योरेंस कराया था जी, तो क्या उसपे भी टैक्सेस मतलब नील हो गए? अब क्योंकि 2 साल पहले कराया था पॉलिसी, थोड़ा सा इस पे जानकारी देंगे सर? थैंक यू। विजय जी, जो अब आप उस पे प्रीमियम देंगे, आप अगर प्रीमियम की स्लिप देखें पहले, जो इनवॉइस टाइप आती है आपको इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें 18% जीएसटी लगता था। अब 22 सितंबर के बाद से, यानी कि अगर 22 सितंबर के बाद आपका प्रीमियम है तो अब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। आपका जो प्रीमियम आप दे रहे हैं इतने साल से, अब वो कम हो जाने वाला है। और मुझे लगता है जो पैसा बचेगा उससे पार्टी वार्टी होनी चाहिए, या कोई सामान खरीदिए, या बिल्कुल। अब रेडियो से लड्डू तो हम मांग नहीं सकते, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जी हाँ, पर्सनल इंश्योरेंस पे बिल्कुल प्रीमियम, अब अगला प्रीमियम आपको कम दिखाई देगा और इससे आगे कम ही रहेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। शंकर भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते, मार्केट मंत्रा टीम। सर, व्हाट लाइज अहेड आफ्टर दिस टैक्स rationalization? The free money, the money which will be freed available for us, hopefully, will flow into which sector? Consumption sector or any you think health sector? या कहाँ which sector should we chase as investors where the money will flow in? Thank you. Well, I think, Shankar, you said what life ahead? Life ahead seems to be quite bright. You'll be obviously saving more money. I think as far as where this money would go, I think this depends on individual to individual. I did an off-the-cuff survey when these announcements were made. Somebody earning a salary of 50,000 typically spends about 20,000 rupees on groceries. Groceries, your kitchen and, toiletries, soap, shampoo, whatever. So, hair oil. So, therefore, if you're spending 20,000, my assumption is that you'll end up saving 2,000. It means your grocery bill goes down to 18,000. Now it is up to me. Now there is a family who wants to put this 2,000 into 24, save this into 24, and probably buy a refrigerator. There's another family which says, no, we will buy some of the items which were beyond our reach now. We will buy a better brand. We'll buy a better quality. Or we'll buy more of it, because sometimes you have to be frugal. आप थोड़ा कंजूसी करते हैं अपने बजट को संकुचित रखने के लिए। तो मैं अगर 1 लीटर दूध लेता था तो मैं अब 2 लीटर लेने लग जाऊंगा। Are you getting me? So this depends on the spending patterns. But yes, your question is very valid. I think FMCG sector and white goods sector and automobile sector, these are the 3 sectors that I am primarily looking at in the long term, where you will see boost in consumptions. Little extent, realty sector, because on cement it's gone down from 28 to 18. So if the builders are kind enough, they will like to pass on the saving of cost to people. We'll go in for a short commercial break and be back with you soon. Welcome back to Market Mantra. We are now joined in by Pankaj from Kolkata. A warm welcome, Pankaj. हेलो जी, सवाल पूछें। जी नमस्ते। हमारा एक सवाल है फिक्स डिपॉजिट के लेकर के। जी, वो यह है कि मान लीजिए यदि मैं फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो क्या पोस्ट ऑफिस में करना ज्यादा बेनिफिशियरी है, या फिर बैंक में करना? क्यों? और यदि दोनों में ही क्या फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योरिटी होगी तो रिटर्न में क्या दोनों में से क्या कुछ किसी में टैक्स कटता है क्या? What's your age? 39। अच्छा, देखिए, मैं इसको लमसम 10 सालों के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट लमसम अमाउंट करना चाहता हूँ, ताकि ये पैसा डबल हो जाए, ऐसा कुछ। अच्छा, चलिए। पंकज, देखिए, जहां तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है, इंटरेस्ट रेंज इस टाइम कर रहे हैं क्योंकि रेट थोड़े डाउनवर्ड्स हैं, तो मुझे लगता है 6 और 7% के बीच में आपको ज्यादातर बैंक, किसी में 25 बेसिस पॉइंट ऊपर, किसी में नीचे, किसी में आधा % ऊपर, किसी में नीचे। पर आपने कंपैरिजन मांगा है पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के बीच में। पोस्ट ऑफिस में भी लगभग थोड़े से शायद आपको 25-50 बेसिस पॉइंट कम मिले। पर आपने टैक्स का पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है। पोस्ट ऑफिस में टीडीएस नहीं कटता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है। आपके 26AS में वो बाकायदा दिखाई देगा, आपको उस पर टैक्स देना है। पर टीडीएस, जिसको टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स कहते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में नहीं कटता है। आपको पूरा पैसा, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, आपको स्वयं उस पर टैक्स जमा करना है, जबकि बैंकों में वो टीडीएस कट जाता है। तो पंकज, कुल मिला के मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आधे % से लेके 0.75 तक थोड़ा, तो आप थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल तो लोग बैंकों की शॉपिंग करते हैं, पर पोस्ट ऑफिस और इसके बीच में चॉइस है। तो पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा प्रक्रिया यह है कि पोस्ट ऑफिस की प्रेजेंस, अभी कुछ पोस्ट ऑफिस सीबीएस पे हैं, कुछ अभी अपने आप को कंप्यूटरीकरण जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, ज्यादातर हो चुके।
तो आपको अगर बैंक ज्यादा सहूलियत जहां दिख रही है, आपको लगता है कुछ, तो आजकल तो प्राइवेट बैंक्स वाले घर आ जाते हैं चल के, पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं करेगा कि आपके घर चल के आएगा। तो आप बाकी हाँ, पोस्ट ऑफिस में एक फर्क जरूर है, सॉवरेन गारंटी है क्योंकि वो भारत सरकार के पास जमा होता है। बैंकों में आपको पता होगा डीआईसी जीसी की 5 लाख तक की गारंटी होती है आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स की। तो कुछ लोगों को, हालांकि आज तक कोई बैंक इस तरीके से डूबा नहीं है मेरी मेमोरी में, परंतु अगर आप बहुत ज्यादा सेफ चाहते हैं तो थोड़ा आपको पोस्ट ऑफिस में क्यू वगैरह कभी कभी आपको देखने को मिलेगी, वो पासबुक अपडेट कराने का पुराना सिस्टम है, तो इसलिए आप ये इस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। The reason why I asked about his age was the post office gives a better rate to senior citizens. हाँ, वो बैंक भी देते हैं, और एक सीनियर सिटीजन डिपॉजिट पर, ये तो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो अभी 39 है। पंकज इज अ वेरी यंग मैन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा सा आपको लेग वर्क करिए, कुछ बैंकों को अपने यहाँ बुलाइए, उनसे रेट लीजिए, पोस्ट ऑफिस जाके रेट पता करिए। जहां आपको लगता है कहीं पर रेट कम है तो सहूलियत ज्यादा है, कहीं सहूलियत ज्यादा है रेट कम है, तो इसके बीच में कहीं ट्रेड ऑफ एक आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। कई कॉल्स हमें जीएसटी से संबंधित आ रहे हैं। हम ये बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले आम आदमी जटिल करों के जाल में फंसा हुआ था, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी सुधारों के माध्यम से इस प्रणाली को और सरल और स्थिर बनाया गया है। और अब चलते हैं बिहार। और बिहार जाने से पहले हम बता दें कि क्या कहते हैं अश्विनी वैष्णव जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। एक बहुत बड़ी राहत, जैसा कि अश्विनी वैष्णव मंत्री जी बता रहे थे। इस पे कुछ और कॉलर्स के अगर सवाल होंगे तो हम आपके पास आएंगे। फिलहाल बिहार चलते हैं। टिंकू जी वहां से जुड़े हुए हैं। टिंकू जी बहुत बहुत स्वागत, पूछ लें सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जो सरकार जीएसटी 2 स्लैब में रखा है, जैसे 0% में रखा है, और ये जो कंपनी जो क्या रिटेलर एमआर देख के ही तो देगा, ये दुकान वाला उसमें एमआर में छूट होगा, ये आम जनता को क्या फायदा होगा कि क्या होगा, कि कंपनी का फायदा होगा कि बेचने वाले का फायदा, ये उलझन थोड़ा हमें बता दीजिए। टिंकू जी आपकी उलझन बिल्कुल दुरुस्त है, और आपके सवाल का मैं अगर एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब ये होगा कि सभी को फायदा होने वाला है। कंपनी को ऐसे फायदा होगा, उनका जब जीएसटी घटेगा, जीएसटी ग्राहक देता है, उनका सामान ज्यादा बिकेगा, ग्राहकों का फायदा होगा, उनके 4 पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। 4 पैसे से मेरा मतलब है 10% से लेके मैंने चश्मा लगाया हुआ है 28 से 5 हो गया है, उदाहरण ले रहा हूं मैं। तो बिल्कुल लोगों का और सरकार का भी फायदा होगा। फायदा सरकार का मेरा मतलब मुनाफे की दृष्टि से नहीं, क्योंकि आने वाले समय में टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी, तो जनहित के लिए जो पैसा यूज किया जाता है उसकी ज्यादा कलेक्शन होगी, सबको फायदा होगा। एमआरपी पे जो आएगा उसमें लगा होता है, उसमें ले कंपनी पहले ही कम कर देंगी, और जिसपे जीएसटी बाद में लगता है उस पे ग्राहक की जागरूकता के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। आप कार्यक्रम को बाद में यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, जिसमें मैंने इसको पूरा विस्तार से समझाया है। फ्रॉम गुरुग्राम वी आर जॉइंड इन बाय राहुल। अ वार्म वेलकम राहुल। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल ना मुझे कुछ आईसीआईसीआई बैंक से मतलब वो बताते हैं कि हम आईसीआईसीआई बैंक से हैं, कुछ फोन आ रहे हैं जी कि एक कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है कि 1 लाख रुपए आप पर ईयर इन्वेस्ट करो, उस पर आपको मतलब 10% का डिस्काउंट भी देंगे, कुछ 12 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, फिर 20 साल बाद कुछ आपका प्रीमियम बनेगा, और फिर उसमें एक कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको मेडिकल पॉलिसी भी दी जा रही है। बट मैंने जब उनसे पूछा कि आप मुझे इसको मेल पे लिख के दे सकते हो, तो उन्होंने वो मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ मतलब मिलेगा आपको, पर हम आपको पास बॉन्ड आएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ये जो IRDAI के हिसाब से इसको एक महीने तक आप रिम्बर्स भी हो जाएगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा अगर आपको लगता है कुछ इसमें फ्रॉड है।
बट वो मुझे भरोसा सा नहीं होता। इसके बारे में आप कुछ बता पाओगे सर? ऐसा कुछ कोई प्लान्स होते हैं? अगर हैं तो मैं कहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ है? देखिए, प्रूडेंशियल ICICI नाम से कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, तो मैं इसको सिरे से खारिज तो नहीं करूंगा, परंतु ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है राहुल कि कॉल जेन्युइन था कि नहीं था। क्योंकि आपने जैसे कहा कि मुझे आप व्हाट्सएप या ईमेल कर दीजिए डिटेल्स, तो वो उनको करना चाहिए, क्योंकि आपको मुंह जुबानी इतनी चीजें बता रहे हैं, याद नहीं रहती, तो आदमी उसको बाद में आराम से देखता है कि मैं देखूं मुझे क्या फायदा है। तो पहले तो इसकी जेन्युइननेस वेरीफाई कर लीजिए, और या आप नियरेस्ट ICICI की ब्रांच पे जाके वहां विजिट कर दीजिए, या आप इंटरनेट पे भी ये सारी पॉलिसीज अवेलेबल हैं। आप देखिए इंटरनेट पे उनकी साइट पे जाके कि ऐसी कोई पॉलिसी है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर आपकी जब पूरी तसल्ली हो तभी आगे बढ़िएगा। बहुत अच्छा किया आपने, एक बहुत जागरूक हैं आप, बहुत सतर्क हैं, और मुझे लगता है ऐसी जागरूकता मदद करती है। Moving on, domestic benchmark indices rose this week amid positive indicators like 17-year high manufacturing PMI, GST rate boosters, and continued DII buying. The Sensex at the Bombay Stock Exchange jumped 901 points or 1.1% to end the week at 80,711. The Nifty at the National Stock Exchange gained 314 points or 1.3% to close at 24,741. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index surged nearly 2% and the BSE Small Cap Index jumped 2.5%. Sharad, what's your expectation from the markets in the coming week? I think the markets, as far as India is concerned, they are very, very nicely poised. It's a very good time for long-term investors to enter. There are some global headwinds, Trump tariffs and so on and so forth, where we should be moving in a positive direction. It also seems to be now moving away. Some truth seems to be coming there, but I think for Indian investors, because Indian fundamentals are fantastic, GST, RBI cut, income tax, the Indian growth story is absolutely intact and doing perfectly well. So for long-term investors, I think it's a good opportunity to invest in bits and pieces for long-term, but do it through SIP. आज के लिए बस इतना ही। तमाम श्रोताओं का धन्यवाद। शरद जी आप आए, आपका भी बहुत बहुत My pleasure. Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi says India deeply appreciates and fully reciprocates US President Donald Trump's sentiment and positive assessment of India-US relations. Says the two countries share forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. GST reforms are expected to add around 20 lakh crore rupees to the nation's GDP, says the Information and Broadcasting Minister. And domestic markets rise on positive indicators. Sensex and Nifty gain over 1% this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.